Good evening, everyone. Am I audible to all of you, please? Yes. Hanji, yes. Mr. Chenna, I think we should start because most of our guests are here. Yes. Please start. Somebody has raised hand just now. Okay. So let me please start sharing the presentation. So, Mr. Chenna, can you please introduce the guests that have joined us? Hello? Mr. Suraj is from Ludhiana. Yeah. Mr. Suraj, I think was also there sometime back in the presentation, if I'm not mistaken. Yeah, Mr. Saurabh Rai is from Bhopal. Okay. So welcome, Mr. Saurabh and Mr. Suraj. I would not be taking much of the time. I think we can ramp it up in another 20-25 minutes. I will try to run the presentation quickly. At the same time, understanding is also important. So because we are limited persons, you can as well either park your questions so that we can take up maybe towards the end of the presentation. I think that would be better. As if you have some serious doubts, then and there you can stop me, and then we can sort it there itself. बाकियों को म्यूट कर दीजिए. Yeah. Can you see the presentation? Is the screen visible to all of you, please? Mr. Chenna, you can respond. Yes, Mukta. Yes. Thank you so much. I think we have got Monica also present here. So, ladies and gentlemen, very good evening to each one of you and welcome you on a presentation. During next 20-25 minutes, I would like to present to you the distribution model, the 8 points patented distribution model of energy. The slide that you are seeing, we talk here about the physical health, mental health, and financial health. Usually, all these 3 components are very important for us. Physical health, mental health, and financial health. Only if 3 of these are there, we as human beings will have peace of mind. If any of these 3 things, even one component misses, even if you have the rest 2, you are not going to enjoy whatever you have. So here you see Mr. Hinorari Yoshio, who is the CEO of Enagic, who has actually developed this model, and also the ionizer Kangen, Enagic Kangen water ionizers as a product. Before moving into the presentation, quickly want to show you a few celebrities, because usually what happens is अगर हमारे पड़ोसी यूज करते हैं हमें उतना कुछ खास नहीं लगता, लेकिन the moment we look at celebrities, we try to connect and feel and we somehow get convinced कि अरे भाई इतने बड़े celebrities यूज कर रहे हैं तो definitely product में दम तो होगा ही, and that too if a celebrity is Bill Gates or Trump. So Bill Gates and Trump, they also use and own these Kangen devices. Trump owns 29 Kangen devices, Bill Gates owns 46 Kangen devices, and believe in me, if I'm showing a pic of Bill Gates and Trump, it is not that I cannot show their pics just like that. It is something which you can find in every presentation made by Enagic. So this is the fact that Bill Gates owns 46 number of Enagic Kangen devices. Trump owns 29 Kangen devices for his family and staff. Now,
owning is one thing. Sometime back, you know, I was reading somewhere, and it is written here also, when somebody was asking Trump as well as Bill Gates, if not this, what you are currently doing, जो आप कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं कर रहे होते, तो आप क्या करते? The common answer that one got from both Bill Gates and Trump was, अगर हम ये नहीं कर रहे होते, तो हम freelancing करते, हम networking करते. So that is the power of, you know, man-to-man business, human-based business. So now, what is my business model that I'm, going to present? And usually, what is a business model we see? So the traditional business model is basically a supply chain model. What happens is there's a manufacturer से जो production होता है वो product warehouse में जाता है, then उसकी advertising, branding वगैरह की जाती है, logistics, फिर distributors होते हैं, distributors manufacturer से जो wholesaler होते हैं, उसके बाद retailers होते हैं, उसके बाद हम लोग होते हैं जो consumers होते हैं. So जब ये supply chain का है तो हम सब जानते हैं कि supply chain में everybody has to be paid at equal intervals. So manufacturer अगर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए की होती है, तो जब वो एंड यूजर के पास आता है तो वही सेम 2 रुपए की चीज जो है हमें 10 रुपए में मिलती है. रीजन भी, यू नो, दे हैव टू एक्चुअली satisfy the cost of every middle person, and manufacturer और consumer के बीच में there are at least 3 to 4 points wherein, you know, this process takes in place. The chain is built in. So that is one process. So usually क्या होता है, even if you take the I would say the very common example जो हम सब बोलते हैं, सुनते हैं, is Coca-Cola, you know, Coke. मुझे याद है बचपन से लेकर मैं सुनती आई हूँ कि अरे यार कोक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज, यू नो, लेस देन 1 रुपी. बट देन कोक जब हमारे पास आता है और बिकता है, वी यू नो हाउ मच यू पे, यू नो, 10 रुपीज, 12 रुपीज, व्हाटएवर. सो बट देन ये कॉस्ट जायज है, बिकॉज जो बाकी लोग हैं उनको भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए. सो दैट इज अ बेसिक सप्लाई चेन मॉडल विच वी आर ऑल यूज्ड टू. हम उसको क्वेश्चन भी नहीं करते. अगर कोई 2 रुपए की चीज हमें 10 रुपए में दे रहे हैं तो वी आर समहाउ, वो बाइन हो गई है कि भाई बीच में ये लोग हैं, उनकी पे आउट होनी चाहिए. Now Energix global business model is basically direct from the factory to the consumer. So फैक्ट्री में एनर्जी के जो आयोनाइजर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, एंड वो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स को पहुंचाया जाता है. एंड बीच में कौन होता है? हम होते हैं, द डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर द फैसिलिटेटर्स, which we call it as डायरेक्ट सेलिंग. अब होता क्या है कि अब क्या डायरेक्ट सेलिंग में कॉस्ट नहीं है? यहाँ पर भी कॉस्ट है. वो कॉस्ट किसको दिया जाता है? That cost has been given to the distributors. One single distributor, a human being, an individual like me or you or Shanna ji or whoever, जो हम इस कंपनी के प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर को अवेयरनेस क्रिएट करके उनको जो सेल करते हैं, उस प्रोसेस को जो फैसिलिटेट करता है उस डिस्ट्रीब्यूटर को, या उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में जो भी चेन है उनको जो है ये पे आउट दी जाती है. तो सप्लाई चेन में यूजुअली, यू नो, इफ यू आस्क मी, जनरली इट इज 40 to 50%, यूजुअली 50% जो कि बीच के मिडलमैन को जाता है. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है एंड उसकी जो एंड कंज्यूमर की जो कॉस्ट है उसमें डेफिनेटली एक डबल मार्जिन होता है. तो सिमिलरली इफ यू टेक एनर्जिक ग्लोबल मॉडल ऑल्सो, द कॉस्ट इज हियर एंड दैट कॉस्ट इज अराउंड 40%. मतलब मैन्युफैक्चरिंग का 40% जो कॉस्ट है that gets distributed amongst the distributors. So let's keep Energix aside for some time. Usually, अगर हम in general supply chain की बात करें कि अगर मुझे supply chain के business में जाना, all of us have joined or we are here to understand the model just because the common interest is business. हम सबको business करना है, इसीलिए हम यहाँ पर इस मॉडल को समझने के लिए बैठे हुए हैं. तो अगर हमें इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, सप्लाई चेन मॉडल में ले रही हूँ, तो उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है 20 lakhs और इवन मोर. देन हमें स्टॉक, वेयर हाउसिंग, स्टॉक मेंटेन करना, वो सारी हेडेक है. उसके लिए ऑफिस लो, स्टाफ मेंटेन करो, टारगेट्स भी होते हैं. यू नो, द कंपनीज और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस की अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई तुम हमारा बिजनेस कितना करोगे. देन दे डिसाइड वेदर आई कैन बिकम द डिस्ट्रीब्यूटर और नॉट बिकम डिस्ट्रीब्यूटर. अगर मुझे आज जाकर होंडा की
फ्रेंचाइजी चाहिए एंड आई अप्रोच देम कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, आप बेचो, वो ऐसे ही नहीं देगा, वो बहुत सारी क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी मेरी देखेगा, उसके बाद जो है मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देगा। एंड उसके पे आउट्स वुड बी मंथली, मंथ में एक बार दे गिव अस। सो यूजुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं एंड देन इनकम उसके हिसाब से मे नॉट बी दैट रिवार्डिंग। इन सारी चीजों का अपोजिट है एनर्जिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर होता है। सबसे बड़ी इसकी तो मुझे ये अच्छी चीज लगती है कि अगर आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन कोड लिया, नाउ आई एम सिटिंग इन इंडिया, आई हैव टेकन अ डिस्ट्रीब्यूटर कोड फ्रॉम एनर्जिक, दिस कोड इज अ ग्लोबल कोड। ऐसा बहुत किसी और एमएलएम कंपनी में भी मैंने आज तक नहीं सुना कि आप अगर इंडिया में कोड लेते हो, उस कोड पे जो है आप जाकर यूएस में भी प्रमोट कर सकते हो। बट देन हियर व्हाटएवर कोड टुडे आई गेट और आई होल्ड, on the same code I can promote business in USA, Australia, Canada, wherever there is a presence of energy. So that is one advantage. आपको स्टॉक्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टारगेट्स नहीं है। इट इज यू हु विल डिसाइड योर ओन चेक। मुझे भाई कितना कमाना, मुझे ज्यादा कमाना है, मैं ज्यादा दौड़ भाग करूंगी, मुझे कम कमाना है, इट्स माय चॉइस, यू आर योर ओन बॉस। ओके, एंड द पे आउट्स आर ऑल्सो बेसिकली अगर मैंने एक मशीन को प्रमोट करा, सेल करा, जैसे ही मशीन डिस्पैच होती है उसकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाती है। सो यूजुअली द सिस्टम इज ऑल्सो फास्ट। सो greater income, efforts are, you can greater efforts, less efforts is your choice. Income, I would say proportionately, aap jitna efforts put karte hain, proportionately you can make an income. And let me tell you, this is not a scheme, this is a pure sales plan that I'm going to present to you. कई बार ना when I approach people, they say अच्छा MLM, when we start talking about this plan, people say अच्छा ये वही MLM networking है ना, but then there is a huge difference between the traditional MLM concept and even the income distribution that they follow and something that has been followed in energy. क्या difference है? Usually normal जो आपके जो जितने भी रेप्यूटेड सो कॉल्ड, आप यू नेम इट, यू नेम एम्बे लीजिए या जो भी लीजिए, आई एम नॉट हियर टू डिग्रेड एम्बे, और बिकॉज एम्बे आल्सो इज गुड नेटवर्किंग और जायंट इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, बट यूजुअली दे फॉलो दिस पिरामिड मॉडल। उसमें होता है कि पहले 5, 25, 125, 625, आपकी टीम नीचे 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 वाइडन होते जाती है, एंड व्हेन इट कम्स टू इनकम, काम नीचे के बंदे करते हैं लेकिन इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से शुरू होती है। सबसे ज्यादा जो पे आउट है जो टॉप में बैठे हैं उनको मिलता है, उसके बाद वो नीचे 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 जैसे जैसे नीचे आती रहती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो भी कम होने लगती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लगता होगा जो एंड में है, उन्हें पता है कि मॉडल क्या है क्या नहीं है, कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है, एंड कई बार होता है कि वो वहां से डिमोटिवेट होकर निकल जाते हैं, और जैसे ही वो चेन टूटती है ऊपर वाले भी वीक होने लगते हैं, बिकॉज वो ह्यूमन टेंडेंसी है। मुझे यही लगेगा कि मैं अगर ज्यादा काम कर रही हूँ तो आई शुड बी इंसेंटिवाइज्ड मोर, एंड उसके बाद बाकी को जो इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन मेरी इंसेंटिव पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट कंपोनेंट इज देयर इन एनर्जिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे मैं हूँ, मेरे नीचे मेरे साथ जो भी जुड़ते हैं हॉरिजॉन्टली वो जुड़ते रहते हैं। इसकी क्लैरिटी आपको आएगी व्हेन आई गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। सो जो काम करता है पहले उसकी पेमेंट दी जाती है, एंड उसके बाद बाकी लोगों की पेमेंट होते रहती है। एक लेवल पे अगर डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक लेवल पे वो पेमेंट जो है वहां तक सीमित हो जाती है। जितने लोग काम करते हैं उतनी उनको पेमेंट मिलती है। हाउ that I will explain, you will get a clarity once you understand the business plan. So usually in traditional MLM payout system, 90% will come for business and 10% are going to be the end users. But then in energetic business, 90% will come for the product and only 10% of the people would be interested in the business plan. Not everybody would like to become a distributor. Reason being, it's also a premium product. This is a product which would fast move in HNI sectors and then high middle class sectors, and maybe people who have already got different sources of avenues and incomes.
So most of them, and being a health plan, most of them would buy the health product. Most of them would, buy in as a medical device or a health device. And as I explained, income distribution from top to bottom, and then in MLM business and in energy, it is from bottom to top. So here, these are basically the 4 different variants of energy Kangen machines, which I would name, but I will not go into the product details. Because I assume either you know the product, or if you want demo on the product, that maybe I will take a separate session. So basically, the base model of Energic Kangen ionizer is Junior 4, which costs 2,18,000. And the flagship product is SD501, which costs 2,77,000. K8 is a little privileged small model, costing 3,43,000 rupees. And then you have the other model, SD50's, I would say commercial version also, we can say it has got more plates in it. So basically, that is still like non-Kangen machines. They perform on the basis and the principle of electrolysis and ionization. And for this, they use this anode, titanium plates which are double dipped in platinum. They're used as anode and cathode. So as the number of plates increase, the cost of the machine is also going to increase. So that is the basic principle. Now let's quickly come into the 8-point, as I mentioned, patented 8-point commission system of Energic. Here I'm showing you the certification of patent that Energic had made for this distribution model. Basically, why 8-point? Because whatever is the commission on a particular product, or a payout, I would say, on a particular product is, that is been divided into 8 points or 8 parts. And these 8 points or 8 parts, usually we call it as 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. I'll address this in the later part of the presentation. Now, let me take here an example. Now, the machine that you are seeing here is SD501, which is the flagship product and model of Energic, costing 2,77,000. So what happens when we sell this particular product? The amount of the payout that has been distributed to the distributors is 1,04,000. So 1,04,000 gets distributed. What is this 1,04,000? It is almost 40% of 2,77,000. And how it gets distributed? It gets distributed as 8 points. So what is the value of 1 point? The value of 1 point is 1,04,000 divided by 8. Can anybody tell me? 1,04,000 divided by 8 is equal to? Anybody can quickly unmute and answer me, please. 1,04,000 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या कॉस्ट बनती है? 13,000. 13,000, yes. So 13,000. Very good. Thank you so much for helping me out. So 1 point की वैल्यू है 13,000. So and 2 point की वैल्यू होती है 13 into 2, 26,000. So अगर कोई 1A डिस्ट्रीब्यूटर है and वो 2,77,000 की मशीन प्रमोट करते हैं तो अगर कोई 2 डिस्ट्रीब्यूटर है 39,000 लेके जाएंगे, 4A डिस्ट्रीब्यूटर है 52,000 लेकर जाएंगे, 5A डिस्ट्रीब्यूटर. Actually these are the values of the है क्या करता है, that again I will 8 points जब complete होता है तो 1,04,000. So basically अभी के लिए हम इतना समझ कि अगर कोई 2,77,000 की मशीन बेचता है, 1,00,000 तक का जो पे आउट है एनर्जी समझाया हुआ है. 8 points. I think someone is coming. हेलो. Now यहाँ पर मैंने
इस स्लाइड में मैंने बस कंपैरिजन दिया है कि डिफरेंट मशीन्स हैं, जैसे SD501 है या जूनियर 4 है या K8 है या सुपर है, उनका पॉइंट वाइज कितना बनता है। अगर हम SD501 बेचते हैं तो पॉइंट वाइज 8 पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन में 1,04,000 जो है कमीशन या पे आउट जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जूनियर 4 में 82,400 डिस्ट्रीब्यूट करती है, K8 में 1,28,000 एंड सुपर 501 में 1,48,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे when we come to business model or distribution model, it is individual choice that he wants to sell it individually. देखिए दो तरह के सेल्स पर्सन होते हैं जो मैंने अपने करियर में देखे हैं. I have done more than 15 years of sales in all corporate, HDFC, ICICI, Fitch Generali and things like that. I was with also stockbrokers. तो मैंने ये देखा है कि दो तरह के सेल्स पर्सन होते हैं. मैं खुद भी एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन रही हूँ. एक ये होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं सेलिंग, दे डू, आई वुड से दे रॉक एज इंडिविजुअल सेल्स पर्संस. गए मार्केट में कहीं पे भी रेगिस्तान में रेत बेच के आओ आ गए, बट देन उनको जब प्रमोट करके लीडर बना देते हैं, जब उनको मैनेजरियल कैडर में डाल देते हैं, वहां पे वो फेल कर जाते हैं. मतलब वो इंडिविजुअल सेल्स अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो शायद टीम को मैनेज उतने अच्छे से नहीं कर पाते. वो बेच सकते हैं लेकिन वो किसी से बिकवा नहीं सकते. राइट. सो यहाँ पे दो चीजें हैं. अगर आप अच्छे सेल्स पर्सन, आपको लगता है आई एम द बेस्ट सेल्स पर्सन, मैं कुछ भी जाके कहीं पे भी बेच सकता हूँ, दैट मॉडल इज ऑल्सो अवेलेबल. अगर आपको लगता है मैं बेच भी सकता हूँ और मैं टीम भी मैनेज कर सकता हूँ, मुझे वो भी एक्सपीरियंस है, और प्रूवन माई सेल्फ इन टीम मैनेजमेंट, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर. So these are the two options. So let us look at कि if you want to be an individual person only selling, no team, आप एक सेल्स पर्सन की तरह जो है आप जा रहे हो, बेच रहे हो, तब हम कैसे और क्या पैसा इसमें बनाते हैं. So you are a distributor, also a user. अच्छा, first condition to become energetic distributor is we have to be user. हमें पहले यूजर बनना है. We have to use the product and only then we can become the distributor. So when I have purchased a product SD501 and सोचे कि अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मैंने अपना पहला सेल करा. By doing first sale, I am a 1A distributor and मेरी पे आउट होगी on SD501 13,000 rupees and junior 4 पे 10,300. Second sale पे भी I will be 1A advisor only. I have to get promoted from 1A to 2A advisor, I need to do 2 direct sales. मुझे पहले 2 डायरेक्ट सेल्स करने हैं. तो मैंने फर्स्ट सेल करा, सेकंड सेल करा, एंड दोनों पे मेरा पे आउट जो था 13,000 बना. सो एज अ 1A डिस्ट्रीब्यूटर आई गेट 26,000. उसके बाद मेरे पास एक और सेल आई. फ्रॉम द थर्ड सेल, द डायरेक्ट थर्ड सेल जैसे ही मैं लॉग इन करती हूँ, आई बिकम अ 2A डिस्ट्रीब्यूटर. एंड जब मैं 2A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती हूँ, वही SD501 बेचा, वही प्रोडक्ट, वही एफर्ट्स, जबकि एफर्ट्स मुझे लगता कम हो जाते हैं. द मोर यू बिकम सीजन्ड, द एफर्ट्स कीप गेटिंग लेसर. आपके कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. सेम मशीन बेचा, मुझे मिला 26,000 रुपीज. एंड अप टू 10th सेल, मैं सेकंड सेल से लेकर 10th सेल तक, ऑन एवरी सेल मुझे जो है 26,000 रुपीज का पे आउट मिलेगा. सो एज अ 2A डिस्ट्रीब्यूटर मैंने 8 मशीन्स बेचे SD501 के, तो मुझे कितना मिला? 2,08,000 बना. और जैसे ही मेरा 10 सेल्स हो जाता है, मुझे 11th सेल आया एंड मैंने अपना डायरेक्ट 11th सेल लॉग इन करा, आई बिकम अ 3A डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन on the same machines, same SD501 बेचा, जहाँ स्लैब में मुझे 10 सेल्स करने हैं. एंड देन 10 सेल्स अगर मैं करती हूँ, अमाउंट दैट आई मेक इज 3,90,000. के बाद मेरे पास एक और सेल आया, 21वां सेल आया. 21वां सेल मैंने एज ए 4A डिस्ट्रीब्यूटर लॉग इन करा, और जैसे ही मैं नेटवर्क ब्रेक हो रहा है. आई थिंक नेटवर्क ब्रेक हो रहा है. वॉइस इज नॉट क्लियर. हाँ जी, वॉइस वॉज ब्रेकिंग.
Sir, your voice is breaking. Yeah, now it's not audible. Hello, Abhishek now. Hello. हेलो। या थोड़ा सा पीछे से लीजिए, इट्स नॉट ऑडिबल। हेलो, हाँ अभी ठीक है, थोड़ा पीछे से लीजिए। कहाँ तक सुना आपने? मिस्टर चड्डा, आपने कहाँ तक? हाँ वही जो 1A सेल तक। वन सेल तक, ओके। इज द स्क्रीन सीन टू यू? फर्स्ट सेल ऑफ मशीन से ले लीजिए। Yeah. I will. मुझे I'm not getting the screen share option here. Just bear with me for some time. हाँ जी, now it's coming. Yeah, thank you so much. So, पहले सेल से ले लीजिए। Yes. yeah. Say I am an Energic distributor and a user. पहले मैंने use किया, उसके बाद now I have got an interest to start promoting Energic business. मैंने मेरे जो first 2 sales हैं, I will be running a distributor till I do 2 direct sales. So मैंने first sale करा, मैंने second sale करा, and दोनों sales में मुझे per machine जो है 13,000 rupees की जो है payout आएगी if it is ST 501. एंड उसके बाद जैसे ही मुझे थर्ड सेल आता है, द मोमेंट आई स्टार्ट लॉगिंग इन माय थर्ड डायरेक्ट सेल ऑन द सेम मशीन, सेम सेल्स, same ST 501, but then the commission that I would be getting, or the payout that I would be getting, is around 26,000 rupees per sale. और इस 2A डिस्ट्रीब्यूटर वाले स्लैब में 2 से लेकर 10 सेल जब तक मैं नहीं करती, आई एम देयर इन 2A डिस्ट्रीब्यूटर स्लैब ओनली. So, जैसे ही मेरा 10 सेल हो जाता है, and by 8 सेल्स हो जाता है, I have to do 8 sales in this particular slab. और जैसे ही 8 सेल्स हो जाता है, I get an eligibility to 3A distribution slab. और जैसे ही मेरा जो है, I get another sale, 11th sale, and then by logging in that 11th sale, I become a 3A distributor. And same वही मशीन है, वही efforts है, but then on that sale I get 39,000 rupees. And मेरा जो 11th sale से लेकर 20th sale तक, every machine that is getting sold, I get 39,000 rupees of payout. So this thing keeps continuing. 4A slab में अगर मुझे पहुंचना है तो eligibility is 21st sale. 21st number से लेकर, I keep getting 52,000 rupees, which is 13 into 4 is 52,000 rupees up to 50 sales. जैसे 50 सेल होने तक 52,000 rupees I'm going to get on every sale. 2,77,000 की मशीन बेचती हूँ और हर मशीन के ऊपर मुझे जो है 52,000 का जो है पे आउट मिलता है. एंड इस लैब में 30 सेल्स करने होते हैं, एंड देन आफ्टर डूइंग द 30 सेल्स, इनकम जो मैं बना रही हूँ, इट इज अराउंड 15,60,000 rupees. From 51st sale, I become a 5A distributor up to 100 sale, and on every sale I keep getting 65,000 rupees, as a payout. उसके बाद जब 100 सेल्स हो जाते हैं, 101st सेल जब मैं करती हूँ, 101
जो 101st सेल मेरा होता है, I become a 6A advisor which is an important slab. एंड इस स्लैब के बाद जैसे ही 101st सेल मेरा डायरेक्ट सेल हो गया, यहाँ से मुझे हर मशीन पे 78,000 रुपीज का पे आउट मिलता है. आई गेट 78,000 रुपीज ऑफ पे आउट ऑन एवरी सेल दैट आई डू लाइफ लॉन्ग. जिंदगी में कभी भी मैं कुछ भी बेचूंगी एनर्जिक का प्रोडक्ट SD501 अगर मैं बेचती हूँ तो मुझे 6 पॉइंट पे आउट की जो है एलिजिबिलिटी आती है. तो यहाँ पे जस्ट हम लोग देखते हैं कि टोटल बस मैंने बेचा, मेरे पास कोई टीम नहीं है. आई एम अ वेरी स्मार्ट सेल्स पर्सन. 101 मशीनें मैंने बेची. सो 101 मशीनें अगर मैं बेच पाई तो मुझे 8 पॉइंट सिस्टम के अंदर 55,12,000 रुपीज मैं बना सकती हूँ. 55 लाख की कमाई मेरी हो सकती है अगर मैं 101 सेल्स करती हूँ. अगर मैं जूनियर 4 बेचती हूँ तो इट वुड बी अराउंड 44 लाख रुपीज. अब ये तो हो गया व्हेन आई एम डूइंग डायरेक्ट सेल्स. बट देन वो एक हो गया कि भाई आप खट रहे हो, एक होता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, दूसरा होता है कि यू वांट टू मल्टीप्लाई योर सेल्स फास्ट. आप टीम लीडर भी हो, आपके पास अच्छी टीम है, यू गॉट गुड पीपल हु कैन गेट कनेक्टेड टू यू, लाइक माइंडेड पीपल आपके साथ काफी लोग हैं, आप जानते हो. वैसे नहीं, वी कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई आवर इनकम फास्ट. कैसे? So this is the second question. Ma'am, can you go back to the previous page once? Sure. This one? वो 1A2 है, yes, this one. Yeah. This one या इसके पहले वाला? यही मैम, यही. मैं एक बार इसको देख के थोड़ा सा समझना चाह रही थी. Sure ma'am, sure. You can ask me also. No, it's quite clear. Just मैं थोड़ा सा वो कैलकुलेशन लास्ट वाला देख रही थी. Fine. हाँ जी, आज के पूरे प्रेजेंटेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन जितने भी यहाँ आए हैं, द जिस्ट ऑफ द होल प्रेजेंटेशन लाइज इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है. आप जिस सिटी में रहते हो, आप जिस स्टेट में रहते हो, कम से कम करोड़ की तो आबादी है ही वहां पे. उनमें से अगर आपने 1 to 1 भी 100 सेल्स अगर हम कर देते हैं तो 55 लाख कहीं नहीं गए. और पानी की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है हिंदुस्तान में. सो शौकीन लोगों की कमी नहीं है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों की कमी नहीं है, अमीर लोगों की कमी नहीं है. ये मशीन खरीदने के लिए पैसे से अमीर होने की जरूरत नहीं है, सोच से अमीर होने की जरूरत है. हेल्थ को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट दे तिजोरी से, वो लोग जरूर खरीदेंगे, लेकिन मशीन में इतनी ताकत है कि दे विल डेफिनेटली बाई. थैंक यू मुक्ता जी, आगे बढ़िए. थैंक यू. सो अभी तक हम जो देख रहे थे, जो पिछले स्लाइड्स में हम ये देख रहे थे कि अगर मैं अकेले ही बैटिंग कर रही हूँ, मैं ही आई एम एन ऑलराउंडर, बैटिंग, फील्डिंग, कस्टमर सर्विस, एवरीथिंग व्हेन आई एम डूइंग, 101 पे जो है मैं 55 लाख कमाती हूँ. बट मेहनत वहां पे ज्यादा है. द सेकेंड वे और स्मार्ट वे इज आप कर रहे हैं, आपके साथ लाइक माइंडेड पीपल, मे बी किसी को आपने बेचा एज एंड यूजर, बट देन जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूं तो आई हैव एक्चुअली टेकन दिस प्रोडक्ट एज एन एंड यूजर ओनली. उसके बाद आई हैव लाइक्ड द प्रोडक्ट एंड व्हेन आई हैव कम टू नो अबाउट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट इट हैज इन दिस, so I thought why not connect with it. ऐसे भी सेल्स का एक्सपीरियंस था ही, है ही, and now also I work for a Singapore based trading firm, so I'm any which ways connected to people. Why not work and utilize this opportunity. तो ये है टीम बिल्डिंग का अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट टू यू. सोचिए ये मैं हूँ, आई हैव डन 1 डायरेक्ट सेल, मुझे कितना मिला? 13,000 मिला. उसके बाद मैंने एक और डायरेक्ट सेल करा, आई एम स्टिल अ 1A एडवाइजर. उस सेकंड डायरेक्ट सेल पे भी मुझे 13,000 मिला. उसके बाद मेरा टोटल इनकम हुआ 26,000. उसके बाद मुझे जो है, as I said, when your total sales reach 2 units, a direct sale will promote you as a 2A distributor. 2 यूनिट मैंडेटरी है. इसके बाद मुझे जैसे ही एक और डायरेक्ट सेल आता है, I get promoted as my third direct sale as 2A distributor. और जैसे ही मैं 2A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी ऑफ पे आउट क्या है? 2 पॉइंट्स. मतलब जो भी मैं सेल करती हूँ उस पर मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे. सो 26,000 मुझे जो है मिलेंगे. तो मेरा टोटल इनकम, अगर मैं 3 मशीन्स बेचती हूँ, एक मशीन पे 13,000, 2 मशीन पे 26,000, 3 मशीन्स पे हो गया 52,000. अब इसके बाद क्या होता है? हो सकता है कि मैंने जो 2 मशीन्स बेचे, सोचिए मैंने एक मशीन जो है सूरज जी को दिया
दूसरा मशीन मैंने चन्ना जी को दिया। अब इसमें से सूरज जी बस मेरे एंड यूजर रहे और चन्ना जी को लगा कि भाई प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्यों ना मैं कुछ पैसे बनाऊं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि अब चन्ना जी ने जो है सोचिए प्रियदर्शनी जी को एक मशीन बेचा। अब जब प्रियदर्शनी जी को चन्ना जी ने एक मशीन बेचा तो वो चन्ना जी का फर्स्ट सेल था या है, तो चन्ना जी को कितना पॉइंट की एलिजिबिलिटी होगी? ही इज अ 1A डिस्ट्रीब्यूटर, तो उनको 13,000 रुपीज मिलेंगे। एंड चन्ना जी मेरे भी 1A डिस्ट्रीब्यूटर है, इसलिए मुझे भी 13,000 मिलेंगे। चन्ना जी बेचते हैं, चन्ना जी को 13,000 रुपीज मिलेंगे, मुझे भी 13,000 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे 1A डिस्ट्रीब्यूटर है। सूरज जी भी मेरे 1A डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उसके बाद 2A जो जैसे ही मैं 2A बन जाती हूँ, 2A लाइन में भी मैंने किसी जिसको भी बेचा है, मेरी जो थर्ड जो सेल है, who else we have? श्रवण और who else we have? चन्ना जी present here. Hello. Hello. Hello, am I audible? Hello. Yes, yes, you are audible and the screen is also there. ओके, सो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जो 1A एडवाइजर में जो भी एडवाइजर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे नीचे हैं, वो लोग जब सेल करते हैं, मैंने अब नहीं करा, मैंने 3 सेल करे, 1A में लाइन में 2 सेल करे, एक सूरज जी को बेचा, एक चन्ना जी को बेचा, एंड 2A लाइन में मैंने एक और सेल करी। अब मेरे 1A लाइन में चन्ना जी और सूरज जी है। सूरज जी काम भी कर रहे हैं, ही इज ओनली एन एंड यूजर, लेकिन चन्ना जी बड़े उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा एंड ही स्टार्टेड प्रमोटिंग द बिजनेस। उन्होंने एक सेल करा, तो वो जब सेल करा प्रियदर्शनी जी को, तो चन्ना जी को मिला 13,000, लेकिन मुझे भी 13,000 मिलता है एज अ स्पॉन्सर, बिकॉज आई हैव ब्रॉट चन्ना जी इनटू द सिस्टम, आई एम सपोर्टिंग चन्ना जी फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, सो बोथ ऑफ अस आर पेड। तो मेरे 1A लाइन में जितने भी सेल्स होते हैं, हर सेल पे मेरा भी पे आउट रहेगा टिल इट कम्स इन दैट 8 पॉइंट्स। सपोजिंग चन्ना की चीज के नीचे किसी और ने ऐसे वो बेचते चले गए डेप्थ में, तब क्या होगा कि जो नीचे सबसे पहले जो बेच रहा है वहां से लेकर, बिकॉज कंपनी तो 1,04,000 ही बेचेगा, सो जो सबसे लास्ट जो 10वें नंबर से लेकर जो दूसरे नंबर तक आते हैं या तीसरे नंबर तक आते हैं, 8 पॉइंट्स वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद ऊपर मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 8 पॉइंट तक की डिस्ट्रीब्यूशन वो चलती रहेगी। ये तो एक बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, मेरे 2A डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने जो 2A डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था वो भी एक्टिव हो गए एंड उन्होंने भी बेचना शुरू करा। जब उन्होंने बेचना शुरू करा तो उनके पहले सेल पे उनको मिलेगा 13,000 रुपए, मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 26,000 रुपए, क्योंकि वो मेरे 2A लाइन में है। मतलब मेरे 2A लाइन में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनके फर्स्ट सेल पे या सेकंड सेल पे उनको 13,000 मिलेगा, बट बिकॉज आई हैव ब्रॉट देम इनटू द सिस्टम, आई एम नर्चरिंग देम एंड आई एम अ 2A डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे 26,000 रुपए मिले। सो उसी तरह से अगर मेरा जो 3A का ग्रुप है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ये लिया गया है कि 2A ग्रुप में जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा वही यहाँ पे एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि मेरे 2A ग्रुप में कोई भी एडवाइजर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जब अपनी पहली दूसरी सेल करते हैं तो उनको 13,000 ही मिलता है, लेकिन मुझे अपने ग्रुप सेल्स के ऊपर 26,000 मिलेगा, क्योंकि वो मेरे ग्रुप के अंदर है। वो उनका जब तीसरा सेल होगा उनको 26,000 मिलेगा, मुझे भी 26,000 मिलेगा। ठीक है, so this is how it is indirect sales पे। Similarly अगर 10+1 होने के बाद मेरा 3A ग्रुप बन जाता है, मेरे 3A ग्रुप में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ गए। so 3A ग्रुप में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ गए, मेरी पॉइंट एलिजिबिलिटी है 39,000 रुपीज। कोई भी मशीन बिचे अगर बिकेगी मुझे 39,000 रुपीज मिलेगा, लेकिन जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पहले 2 सेल्स पे उनको 13,000 मिलेगा, लेकिन मुझे 39,000 मिलेगा। उनके तीसरे सेल पे उनको 26,000 मिलेगा, लेकिन मुझे कितना मिलेगा? 39,000 रुपीज मिलेगा। सो बेसिकली दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल,
कि आप अगर टीम बना रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड क्योंकि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी भी साइमल्टेनियसली टीम बनाते जाए. So because you are supporting each one of them, you are also in between getting incentivized. So similarly for a group में मेरा कोई एडवाइजर जुड़ता है, वो जो फर्स्ट 2 मशीन्स बेचते हैं उनको मिलेगा 13,000, मुझे मिलेगा फॉर ए ग्रुप में 52,000. थर्ड सेल उनको मिलेगा 26, मुझे मिलेगा 52. सो जब 4A लाइन में जब तक 8A पॉइंट के बीच में मैं रहती हूँ, मुझे मेरा जो 52,000 का पे आउट है वो मिलते रहेगा. सो सिमिलरली जैसे ही मैं 5A डिस्ट्रीब्यूटर बनती हूँ, मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझसे जुड़ते हैं उनको फर्स्ट सेल पे 13,000, सेकंड सेल पे 13,000, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, उस फर्स्ट सेल पे उनको 13 मिल रहा है, मुझे 65 मिल रहा है. उनके सेकंड सेल पे उनको 13 मिल रहा है, मुझे 65 मिल रहा है. उनके थर्ड सेल पे उनको 26,000 मिल रहा है, मुझे 65,000 रुपीस मिल रहा है. सो बेसिकली this is how the income distribution is getting done. उसके बाद जैसे ही 5A ग्रुप में मैंने बताया था आपको कि अप टू 100 सेल्स 5A ग्रुप होता है, और जैसे ही मेरा डायरेक्ट टेक ऑल सेल 101st सेल जो मैं करती हूँ, आई बिकम अ 6A एडवाइजर. एंड द मोमेंट आई बिकम अ 6A एडवाइजर, मुझे हर सेल पे जो है मेरी एलिजिबिलिटी होती है 78,000 रुपीज की. यहाँ पे कोई मेरा एडवाइजर एक सेल लाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर एक सेल लाते हैं, उन्हें मिलता है 13,000, मुझे मिलता है 78,000 रुपीज. उनके दूसरे सेल पे उनको 13,000 मिलता है, मेरे को 78,000 रुपीज मिलता है. उनके तीसरे सेल पे उनको 26,000 मिलता है, मुझे 78,000 रुपीज मिलता है. So the beauty of this particular model is, if you are a smart salesperson, not a good leader, not good at team building, you can go sell it by yourself. But if you are also a good team leader, good you've got leadership skills and you have got potential people to associate with you, you can also individually sell, support the team and then build the team. तो दोनों तरह से it is rewarding. अब यहाँ पे 6A is a very important mark, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 8 पॉइंट्स तक ही जो है कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है. एंड अगर आपकी प्लेसमेंट 8 पॉइंट्स के ऊपर है, अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सोचिए मैं हूँ, मेरे बाद चन्ना जी हैं, चन्ना जी के बाद प्रियदर्शनी जी हैं, एंड वो ऐसे सेल करते करते, बिकॉज सेल्स देखिए अपने कंट्रोल में नहीं रहता है कि कौन कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है. और कंपनी जो है 8 पॉइंट्स ही जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी. तो अगर कहीं ना कहीं मेरी टीम बड़ी हो गई, एंड देन मेरी प्लेसमेंट यहाँ पर है, लेकिन जो सेल हुआ है 8 पॉइंट्स के नीचे हुआ है, उस समय मुझे कुछ नहीं मिलेगा. बट जब आप 6A एडवाइजर हो जाते हैं, द मोमेंट यू हिट 6A, क्या होता है, जितने भी नॉन 8A सेल्स हैं उसको नॉन 8A सेल्स इस 8 पॉइंट्स के बाहर के रेंज में जो भी सेल्स होते हैं, ऑन एवरी सेल यू आर गोइंग टू गेट 11,000 रुपीज. 11,000 रुपीज फॉर समथिंग दैट यू आर एंड इट इज गोइंग टू बी बिग इनकम, बिकॉज इतनी ज्यादा टीम आपकी स्प्रेड हो जाती है, एंड हर सेल पे जो है वहां पे व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग 11,000, एक छोटा, उसको हम कहते हैं एजुकेशनल बोनस ऑन नॉन 8A सेल्स. व्हाई एजुकेशनल बोनस? बिकॉज आप सारी टीम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए, अपने लिए जो है आप टाइम नहीं निकाल पाते. एंड जो काम कर रहे हैं उनको तो कमीशन 8A दे रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है एज अ मोटिवेटर और अ लीडर, यू आल्सो शुड गेट समथिंग. सो ऑन एवरी सेल, नॉन 8A सेल, कंपनी सेज आई एम गोइंग टू शेयर माय प्रॉफिट. अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज नॉट बिटवीन दैट 1,04,000, जो 1,04,000 उसे कंपनी को बांटना था, वो सारे जितने भी लोग हार्डवर्क कर रहे हैं उनको बांट दिए. अब मैं हूँ, अब मैं भी तो कर ही रही हूँ, मैं भी हार्डवर्क कर रही हूँ, मुझे क्या, इफ आई आस्क आई एम अ 6A डिस्ट्रीब्यूटर, अब मुझे क्या मिलेगा? कंपनी सेज बिकॉज यू आर प्रमोटिंग, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग से एक उन्होंने अपना रिजर्व बनाया हुआ, जिसमें से दे से कि 11,000 रुपीज ऑन एवरी सेल will be given to the 6A distributor as
एजुकेशनल बोनस। तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर मेरी टीम स्प्रेड हो गई एंड 1000 सेल्स तक अगर कभी 1000 सेल्स हुए उस टीम में, तो एंड 1000 इंटू 11,000 कितना अमाउंट बनता है? 1,10,00,000। चलिए 1000 छोड़ दीजिए, 100 सेल्स हुए, मेरे टीम ने एक महीने में 100 सेल्स करे, तो 100 सेल्स इज ऑल्सो नो लेस, राइट? 100 इंटू 11,000 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग अमाउंट। सो दिस इज व्हाट इज आफ्टर 6A। मैं अच्छा 6A के बाद भी काफी कुछ है, काफी पे आउट्स हैं, जैसे टाइटल इंसेंटिव है, many things are there, team incentives होते हैं, that I will not address now because वो सब करने के लिए पहले हमें 6A डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। So I would love to take the questions। यहाँ पे बस एक छोटा सा summary है कि मैं हूँ and मैंने सोचे न्यूली ज्वाइन करा है, तो पहले तो सेल्स के लिए I am going to be a 1A advisor or a distributor। 13,000 is something that I am going to get। The moment I become 2A distributor, और 2A distributor करने के लिए मुझे 2 direct sales plus another 1 direct sale I need to do, तो मुझे 26,000 रुपीस मिलेंगे। 3A distributor के लिए मुझे जो 11th direct sale मेरा होना है 39,000, 4A distributor 52,000, 5A distributor 65,000, 6A distributor 78,000। अच्छा, यहाँ पे one beautiful point or important point that I would like to tell you is, सोचिए मैं आज जुड़ी, मैंने 2 डायरेक्ट सेल्स कर दिए एंड 3 डायरेक्ट सेल्स मेरे हो गए एंड मैं 2A डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। उसके बाद मुझे कुछ घर का सोचिए एंगेजमेंट हो गया या फिर ऑफिस के एविगेशंस की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई, आई डिडंट गेट एनी सेल। बट इस बीच मेरे जो 2 एडवाइजर जो सूरज जी और चन्ना जी जुड़े थे वो काफी एग्रेसिव हुए एंड जो मेरे 2A एडवाइजर है, इन तीनों ने मिलकर अगर सोचे 20 सेल्स कर दी, 20 सेल्स कर दी। उसके बाद जो है मुझे एक डायरेक्ट सेल आया, तो ये जो टीम ने सेल्स करे हैं दैट विल बी काउंटेड इनटू माय अकाउंट। जो 20 सेल्स टीम ने करे हैं दैट विल बी काउंटेड इनटू माय अकाउंट एंड मैं डायरेक्टली, एक्चुअली 2A के बाद तो मुझे 3A होना चाहिए, राइट? बट देन मैं डायरेक्टली 4A बन सकती हूँ, बिकॉज 4A बनने के लिए क्या चाहिए? 21st सेल। 20 सेल अगर आपका टीम में हो जाता है तो एक डायरेक्ट लॉगिन हमें जो है करना है एंड देन आई बिकम 4A। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट मैंने कितने बेचे, इट्स अबाउट एज अ ग्रुप हमने कितने बेचे। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। होप आई एम क्लियर हियर, और अगर नहीं हूँ, if you require clarity maybe towards the end of the presentation you can always ask me the question। So हमारी जो यहाँ पे the sentence itself is self-explanatory। The promotion is calculated based on your direct and indirect groups। मुझे 6A बनने के लिए मुझे 100 बेचने की जरूरत नहीं है। 6A बनने के लिए मुझे डायरेक्ट मुझे कितने बेचने हैं? 1A में 2 जो डायरेक्ट सेल्स हैं, 2A का 1 सेल, 3A का 1 सेल, 4A का 1 सेल, 5A का 1 सेल और 6A का 1 सेल। 7 डायरेक्ट सेल्स बस मुझे करने हैं। बाकी मैंने जो टीम बनाया smart people and if I have equally supported them। देखिए कोई टीम आपके लिए काम नहीं करेगा unless and until you as I would say as a leader you don't support, you don't handhold। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, बिजनेस तो काफी लोग करते हैं, काफी लोगों से जुड़ते हैं, बट देन इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहली बात कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रमोट कर रहे हो, एंड दूसरी बात आप किसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हो, बिकॉज दैट मेंटोरिंग एंड लीडरशिप एंड हैंड होल्डिंग जो है दैट इज रिक्वायर्ड। इफ दैट इज नॉट देयर आई एम श्योर गुरु जो बोलते हैं ना, गुरु की जरूरत होती है हर स्टेज में। हमें लगता है एक स्टेज में आके कि भाई आई एम सेल्फ रिलायंट, नहीं, हमारे ऊपर कोई ना कोई हो के जब तक हमें एक डायरेक्शन ना दे, उस डायरेक्शन से जो है एक निखार आती है एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। आज की डेट में आप लोग देखते होंगे स्कूल्स वगैरह में, एकेडमिक इंडस्ट्री में कमर्शियलाइजेशन क्यों है? हम लोग क्यों लाखों लेके घूमते हैं कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो जाए? क्यों? क्या गुरु तो सारे जगह एक ही है, सारे जगह एक ही जगह जैसे पढ़ाते हैं, लेकिन मे बी उस स्कूल में जो मेंटोरिंग है वो ज्यादा बेटर है व्हेन कंपेयर टू अदर स्कूल। सो it applies to every place, right? So I hope I am clear here कि
ग्रुप हमारी जो प्रमोशन है, मुझे 6 से एडवाइजर बनना है, 101 मुझे नहीं बेचने की जरूरत है, 7 बस मैं अगर डायरेक्ट बेच पाती हूँ और बाकी अपनी टीम के साथ मिलकर 10 लोग या 8 लोग या 20 लोग हम लोग एज ए टीम वो मैं अगर वो प्रमोट कर पाती हूँ तो आई एम अ 6 से एडवाइजर। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि बने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने टोटल ग्रुप सेल्स 20 कर दिया। मेरे बने सूरज जी और चन्ना जी ने मिलकर अगर 20 सेल कर दिए तो मेरा जो दूसरा डायरेक्ट सेल है दैट आई कैन लॉग इन एज अ 4A डिस्ट्रीब्यूटर, आई गेट प्रमोटेड एज 4A डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे 4A डिस्ट्रीब्यूटर का खिताब चाहिए तो एक डायरेक्ट लॉग इन लाके मैं डाल दूं एंड आई बिकम अ 4A डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे पे आउट की एलिजिबिलिटी भी 13x4 हो जाती है 52,000। सो सेकंड एग्जांपल इन्होंने लिया है कि 1A और 3A का ग्रुप इन सब ने मिलाकर 100 सेल्स कर दिए। ओके, मैंने बस 3 डायरेक्ट सेल्स करे हैं बट मेरे ग्रुप ने मिलकर 100 सेल्स कर दिए। मैंने एक और सेल डायरेक्ट करा एंड मैं 6 से एडवाइजर बन गई। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। कंपनी रिकॉग्नाइजेस, कंपनी एनर्जी डजंट से कि भाई तुम ही बेचो, तुम बेचो या तुम्हारा टीम बेचे। एज अ ग्रुप if you are working together, so then you know it is going to be everyone's I would say reward. So यहाँ पे बस एक motivational मुझे अच्छा लगा। Just it's only after you stepped outside your comfort zone you begin to change, grow and transform. जब तक हम अपने comfort zone में रहते हैं हम वही रहते हैं जो है। सोचिए आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो ओके आई एम अ कंटेंटेड पर्सन एंड मैं वही रहूंगी, वही रहेगा मेरे पास जो आज की डेट में है। लेकिन अगर मुझे कुछ चेंज चाहिए, यहाँ से मुझे बेहतर होना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा एंड ओनली देन आई विल बी अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट के रेंजेस हैं जो मैंने आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दैट इन प्रीवियस स्लाइड। एक छोटा सा समरी देख लेते हैं। व्हाट आर द की एडवांटेजेस ऑफ एनर्जी बिजनेस मॉडल। सबसे पहली बात, टारगेट नहीं है, आपकी मर्जी, आप कंटेंटेड हो। मैं 2A एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में ठीक हूँ, 2A मैंने टीम बना लिया, उसके साथ मैं जितना करना चाहती हूँ फाइन। आई वांट टू बी ओनली अ सेल्स पर्सन, आई डोंट वांट टू बिल्ड अ टीम, ओके। आई डोंट वांट टू सेल डायरेक्टली, आई वांट टू बिल्ड अ टीम एंड देन प्रमोट, ओके। सो बेसिकली नो टारगेट्स फ्रॉम कंपनी साइड, भाई इतना करोगे तो इतना है, बस वही चीजें हैं। एक इसमें कैच है, डायरेक्ट सेल। मतलब टीम अगर 20 करता है तो एटलीस्ट एक डायरेक्ट सेल आपका होना चाहिए टू बिकम अ 4A डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो जो 7 है दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, उसके आगे और कोई भी टारगेट नहीं है। सिमिलरली डिमोशन नहीं है। सपोजिंग मैं 6 से एडवाइजर बन गई, ये सोचिए मैं 4A एडवाइजर बन गई, डिस्ट्रीब्यूटर बन गई, उसके बाद कुछ कमिटमेंट्स, फैमिली कमिटमेंट्स एंड ऑल, मैं 1-1.5 साल तक मैंने कुछ भी काम नहीं करा। उसके बाद मैं जगी, फिर मैं वापस आई। काफी जगह आप देखते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी होता है एंड इवन अदर मल्टी MLM कंपनीज में भी ऐसा रहता है कि भाई तुम्हारा रैंक अब वो नहीं रहा जो तुम हो, यू गेट डिमोटेड, आपको फिर नीचे से शुरू करना है। यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे 1.5 साल के बाद मैं आती हूँ, इफ आई एम अ 4A डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे भाई ये लो पकड़ो अपना 4A डिस्ट्रीब्यूटर का जो खिताब, एंड वो टीम भी जो थी मेरी वो भी सारे लिंक्ड रहती है एंड एवरी पे आउट इज बीन गिवन। सो कोई डिमोशन नहीं है, जो हमने हार्डवर्क करा है वो कहीं नहीं जाता, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। उसके बाद इसका जो 8A पे आउट मॉडल है, इट इज पेटेंटेड मॉडल। देन कोई भी चीज शुभस्त शीघ्रम, आई डोंट नो, हम अपनी लैंग्वेज में, मैं आंध्रा को बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स हमेशा, स्पेशली मेरी मदर, जो वो बोलते रहती है शुभस्त शीघ्रम, जो शुभ काम में, हिंदी में बोलते हैं ना, शुभ काम में देरी किस बात की। ऐसे ही कोई भी बिजनेस हो या कोई भी कमर्शियल वेंचर हो, उसमें हम जितनी जल्दी, कोई भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है कहीं पे, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या कोई भी बिजनेस नई है, कंपनी नई खुली है, तो जितनी जल्दी हम उसके साथ जुड़ते हैं, हमारे लिए जो है उतना ज्यादा स्कोप होता है टू पेनिट्रेट एंड एक्सपैंड। आज की डेट में एनर्जी इज जस्ट 4 years ओल्ड टू इंडिया। 8 साल के बाद, अगर 8 साल के बाद मैं अभी सोचते 8 साल के बाद जुड़ती हूँ, देखिए 8 साल में कितने और एडवाइजर्स जुड़ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ जाएंगे, लोगों की अवेयरनेस बढ़ जाएगी। अभी बहुत कम लोग जानते हैं,
तो हमारे पास एटलीस्ट बात करने का मौका है हर किसी के साथ, भले खरीदे ना खरीदे सुनेंगे, बट 8 साल के बाद ऐसा एक सिचुएशन आएगा, अच्छा ये मैंने सुना था, मैं बताती हूँ, आपको बात करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अर्ली द बेटर। अभी आज की डेट में देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड आल्सो पेनिट्रेशन इन द मार्केट। एंड उसके बाद दूसरी बात क्या है कि आज की डेट में अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो हमारे नॉन में कोई ना कोई जो एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो जाकर उनको टच करेगा। सो व्हाई गिव दैट आई वुड से मौका वो क्यों दें हम किसी को। Energic is the only industry leader. No competition as of now in Indian market in this, independent distributor model for Energic. And सबसे important बात क्या है कि इसमें जो भी हम legacy बनाते हैं, जो भी हम अपना एक स्टेचर बनाते हैं, 6 से बन गए, 4 बन गए, ये 3 generations तक it is going to pass on. अभी 2 दिन पहले I was actually listening from our leader. He was भी है जो एक global rank है उनका, जो मैंने बोला था उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। Hello, am I audible? Internet connect. Hello. Hello. हाँ जी, ऑडिबल है। You're audible. You're audible. Yeah. Thank you. तो यहाँ पे ये legacy for 3 generations की जो मैं बात कर रही हूँ, this I have come to know about from my leader. वो अपना personal experience share कर रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले ये जो है business अपनी mother के नाम पे शुरू करा था, and 2 years back I think he lost his mother. Immediately he got a call from Energic saying that we have come to know that this unfortunate thing has happened. अब आप ये बताएं कि ये जो कोड है हम किसके नाम पे ट्रांसफर करें, उनका जितना भी इनकम या टीम है हम किसके साथ लिंक करें। So आज की डेट में मैं जो भी बिजनेस बिल्ड करती हूँ that is going to go to my daughter and उसके बाद उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है। So this is basically a legacy for 3 generations that we can make. तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम किस कैटेगरी को मेंशन बिलोंग करते हैं। हम एंड यूजर हैं कम वी वांट टू शेयर द एडवांटेजेस, वी वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, पार्ट टाइमर, फुल टाइमर और अ टीम लीडर बिफोर वी जॉइन दिस प्रोडक्ट। And I want to tell you something about the Energic. It is basically a global brand. It is present in 23 countries and 40 locations. Actually, it is not 38. It is 40 locations. Energic is original equipment manufacturer in the sense, जो भी इसके नट से लेकर बोर्ड से लेकर पूरा जो मशीन है एक ही फैक्ट्री में, Energic की फैक्ट्री में बनता है। I have also in the slide you can see the ओसाका जापान जहाँ पर Energic की फैक्ट्री है। एंड ये ग्लोबल प्रेजेंस दिखा रहा है कि कहाँ है। यू नेम एनी एडवांस्ड कंट्री दैट वी थिंक द Energic इज देयर। एंड कई बार मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये तो HNI प्रोडक्ट है, नहीं बिकेगा, लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनके पास ये मशीन है, आप मुझे भी देख सकते हैं, मेरे पास ये मशीन है। एंड आई एम नॉट दैट मल्टी मिलियनेयर और बिलियनेयर, ओके, आई एम ऑल्सो अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक ऑल ऑफ यू। एंड हमारे पास ये मशीन्स हैं। So, जितने भी ये लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, they are either the end users और end users कम distributors, and हम ये practical है, हम लेते हैं। तो ये लोग वो हैं। यहाँ पे आपको एक फार्मर भी दिख रहे होंगे extreme and left hand side जिन्होंने ये मशीन लगवाई है। तो basically these are the people who are the proud owners of this particular machine. They are the people who value the health of their family and basically बिक रहा है, And it is not that ये only HNIs ले रहे हैं, ये हम जैसे लोग ले रहे हैं। That is what we have to strongly believe first to promote this product. वो belief अगर हमारे में नहीं आएगी तो ये machine बेचना बहुत मुश्किल होगा। So it's not about having the right opportunities. It's also about handling the opportunities right. Is something the Mark said. So I thought I should share that. So I would only say you should think twice, be wise, take action. Because it's our destiny. Many people say कि मैं पूछ के बताता हूँ, पड़ोसी के घर में आएगा तो लगवा लूंगा। अरे भाई कोई और हमें हमारे हेल्थ के बारे में या हमारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्यों डिसाइड करे? क्या हमारे में वो काबिलियत नहीं है कि हम ये सोचे कि ये प्रोडक्ट सही है नहीं है, ये हमें फिट करता है नहीं करता है?
इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है हमें सूट करती है नहीं करती है. So with that words, I would like to conclude, and I'm open for questions now. Any questions? You can ask me, please. Suraj ji, Rubina ji, any questions? Verma ji? Shra ji, any questions? No question, sir. Everything clear? Yes. Excellent. Namrata, you have any question? Monica from Delhi have any questions? Can always ask me. No question, Mukta, right now. And I'm understanding whatever you tell. So anything, I would like to take the feedback on the business model. आपको क्या लगता है? What did you like about this model? आपको इस मॉडल में क्या अच्छा लगा? One point, I would say one point जो आपको अच्छा लगा, you can share with me. यहाँ I can see Mr. Verma is there, Suraj ji, Rubina ji. You can it is, see, all of us more or less हम business wise जुड़े ना जुड़े, as individuals हम जुड़ गए हैं. It can be an open platform. If you have any doubts, you can always ask me, or you can park it for later stage, and maybe you can get in touch with Channa ji also, and you can discuss with him. That's okay. If you have no questions, then we can sign off. And if you have questions, then I'm there for another, say, 5 minutes or so. Any slide that you want to revisit? कोई slide ऐसा है जो आप चाहते हैं कि एक बार फिर से देखें, समझें? I think Channa ji, whatever I have presented, maybe that was very clear. Or maybe they Yes, want to yes, ask. it was excellent, and it is up to all of us who have gathered here to understand कि अगर एक लाइन में पूछा गया है किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से कि tell me in one line what is the secret behind your success, everybody told we grabbed the right opportunity at the right time. और ये एक लाइन में ही बात खत्म हो जाती है. So now Kangen water is the right opportunity for India because 90% of people do not know what is Kangen water. So कई बार होता है ना, यहाँ बहुत बड़ा जंगल है, हम बोल रहे हैं 2 लाख में 1 एकड़ जमीन ले लीजिए, बट यू से कि ये तो बहुत जंगल है, यहाँ कौन आएगा. लेकिन कुछ विजनरीज होते हैं जिनको पता चल गया होता है यहाँ से हाईवे जाने वाला है, यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, मे बी आफ्टर 5 years 10 years, so they buy that piece of land at the rate of 2 lakh rupees per acre. तो अभी वैसा ही हो रहा है. फिलहाल यू मे नॉट बी सीइंग एनीथिंग, लेकिन पेपर लीक हो चुका है, ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में है कि यहाँ से हाईवे जाने वाली है. तो जो 2-3 लाख रुपए की मशीन बताई गई है उसको खरीद लीजिए, and be willing to learn, be willing to change, be willing to work, so that we can really make the people, the citizens and the society and our country healthy, and parallelly we can all be wealthy. So that is all we can say. Baki God gives equal opportunity to everybody, very few make use of it. So हम आप पे छोड़ते हैं कि आपको कितना समझ में आता है. नहीं, अदरवाइज हम लोग बहुत सीरियस है आपके ड्रीम्स के बारे में. We are really serious about making your whole family healthy. We are really serious about if you have any dreams जो आपने अगर डायरी में लिखे हैं, उसके सामने डेट डाल दी है, उसके आगे बजट अगर लिख दिया है और सोच रहे हो ये सपने पूरे कहाँ से होंगे, आप सीरियस हो या ना हो, लेकिन we are really serious about your dreams. So आप one-to-one भी connect कर सकते हैं. And then I would like to copy your sentence here जो आप बोलते हो कि अगर आप सपने देखने की ताकत रखते हैं
वो ताकत रखता है कि वो सपने साकार हों. This is your patented dialogue. Yes, So yes. let me use this. Yeah. And one more thing that I would like to make a submission here is, अगर आप में से किसी को product की demo आप लोगों ने नहीं देखी है और you want to look at the product demo also, that maybe Chana ji you can coordinate and then we can plan a product demo some time. That is one. Yes. And second thing is, again I would like to reiterate here is अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम में ग्रैब करना इज इम्पोर्टेंट. और आज की डेट में अगर हम जो नोटेड आप एमबे वगैरह लिखिए, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, डायमंड्स और जो भी उनके क्रेडिबल लीडर्स हैं, वो सारे वो लोग हैं जो 20 साल से एमबे के साथ जुड़े हैं. मतलब उन्होंने राइट टाइम में वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को पकड़ा या उसमें एंटर करा. देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी, मैं नहीं कह रही हूँ कि अच्छी है बुरी है, हमें देखना चाहिए. यस, वी हैव टू एक्चुअली सी कि कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है. उसके साथ साथ उस कंपनी के साथ हम कब जुड़ रहे हैं इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इट इज एज गुड एज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, राइट. सो टाइमिंग ऑल्सो मेक्स, कई लोग हाथ जला लेते हैं और कई लोग उसी स्टॉक मार्केट्स में पैसे बनाते हैं. So, उस चीज को जज करना, राइट अपॉर्चुनिटी को देखना एंड उसको पकड़ना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. यहाँ पे मैं एक चीज और शेयर करती हूँ जो मैं अपने लीडर्स से मैंने कल परसों सुना था when they were talking, कि जिस तरह से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के बारे में वो बता रहे थे कि कुछ साल पहले जो है रियल एस्टेट ऐसा होता था, ही वाज शेयरिंग कि हमारे समय में कोई लड़की नहीं देते थे अगर कोई रियल एस्टेट कोई रियल्टर है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है. बट आज की डेट में पीछे जो अगर वो 10-15 साल का जो एक स्पैन था जिसमें उस रियल एस्टेट ने बूम देखा, वो बूम क्यों था वहां पर. यूजुअली जैसे चंद्रा जी ने अभी मेंशन करा कि जिसकी वो थॉट थी कि भाई ये स्कैर्सिटी है. आज की डेट में 1/3 अगर लैंड है, 2/3 वाटर है, 1/3 इज लैंड एंड लैंड की स्कैर्सिटी है और होने वाली है. जिस किसी के पास ये विजन था वो उस इंडस्ट्री के साथ जुड़े, रियल एस्टेट में लगाया भी, पैसा बनाया, राइट. और हम जैसे लोग जिसको नॉलेज नहीं था, हमने शायद उस बूम का बहुत ज्यादा एडवांटेज हम नहीं ले पाए. सो नेक्स्ट बूम दैट इज गोइंग टू बी देयर इज इन वाटर इंडस्ट्री, बिकॉज वाटर इज लार्जली इन स्कैर्सिटी. एक तो है कि पीने का पानी, स्टैटिस्टिक्स इफ आई राइटली रिमेंबर ही वाज सेइंग कि 3.5% जितना भी अवेलेबल वाटर है उसमें से ओनली 3.5% वाटर इज इनटू ड्रिंकिंग कैटेगरी. उसके आगे ड्रिंकिंग कैटेगरी में भी हमें वो पानी नहीं मिलने वाला है. तो आगे जाकर पानी का अभाव भी होने वाला है, क्वालिटी वाटर का भी अभाव होने वाला है. तो इस इंडस्ट्री को एक तो हेल्थ, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है हेल्थ से जुड़ा है और पानी से जुड़ा है, इन दोनों चीजों को अगर आप राइटली पकड़ पाएंगे, टाइमली पकड़ पाएंगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर टू मेक अ मार्क ऑफ योरसेल्फ. दैट इज इम्पोर्टेंट. So with that, I would make a closing note and thank you so much everyone. मैंने 20-25 मिनट बोला था, लेकिन मुझे लगता है मैंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया आपका. नहीं, but it was worth. Thank you Mukta ji for sparing your Thank you precious so much. time and empowering all with the opportunity. Thank you so much. And I'm sure we are again going to connect with each other. Thank you so much.